Hello, welcome to all of you once again. And today topic is quadratic equation exercise 4.2. But already we learned about what is the quadratic equation, form of quadratic equation, and how many types of quadratic equation. Okay, but today we will discuss solution of a quadratic equation by factorization. Solution of a quadratic equation by factorization. Factorization means factor. Okay, any number, take any number like 5, 10 and 2 and 4 also. So what is the factor of number 4? 2 2s are 4. And factor of 5? 1 into 5 is 5. This the small number is consume the part of the bigger number. So this is factorization. So solution of a quadratic equation by factorization. But in a general way, in the polynomial chapter, a real number alpha is called a root of the quadratic equation. A real number alpha, taking any variables alpha, theta, okay, alpha is called a root of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 and a is not equal to 0. And if suppose a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0, then we also say that x is equal to alpha, because putting in this condition x is equal to alpha. X is equal to alpha is a solution of a quadratic equation also, or that alpha satisfied the quadratic equation. Alpha satisfied the quadratic equation. ठीक, quadratic polynomials and quadratic equations are different. Quadratic polynomials and quadratic equation are different. How is it possible? We know that the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c, zeros, and the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, taking the 0, are the same. In polynomials, answer gives 2 zeros, but in quadratic equation answer gives 2 roots. But zeros and roots are the same thing in the quadratic equation as well as quadratic polynomial. These are trinomial, but this is quadratic polynomial, standard form ax square plus bx plus c, and quadratic equation, standard form ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay, understood all of you? Note this topic, and after this topic in exercise 4.2, solution of a quadratic equation by factorization. Okay, in exercise 4.2, question number 1, find the roots of the following quadratic equation by factorization. By factorization. But before class and before exercise in chapter, using the identities, then solve the some quadratic equation, some trinomial, some binomial, the help of the identities. But here use the factorization method. So question number 1, part first. The given equation is given equation
is x square minus 3x minus 10 is equal to 0. Okay student, this is trinomial, this is standard quadratic equation, where because ax square plus bx plus c is equal to 0, this is standard quadratic equation. Okay, by the factorization method in given exercise, this is a, b and c. Okay, but here the coefficient of x square is 1. अगर कोई नंबर इसमें होगा तो वह रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं होगा तो आप वहां पर इसको 1 एग्जामिन करके सॉल्व करेंगे. तो हियर इज 1 मल्टीप्लाई बाय 10, जो भी आपके साथ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का वेरिएबल होगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ. तो 1 10 10. इस 10 का एक प्रॉपर फैक्टर निकालेंगे यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 5 10 and 5 1 5. Okay, these are two factors, 2 and 5. Utilize this factor in the middle term. यहाँ की जो भी फैक्टर आपको मिलते हैं स्मॉल फैक्टर, उसको आप ऐसे कंज्यूम करो कि सारे फैक्टर उसके यूज में आ जाएं और हमारा मिडिल टर्म एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे हमको मिल जाए. बट उस नंबर को जब मल्टीप्लाई करें तो हमारा मेन प्रोडक्ट आंसर 10 आ जाना चाहिए. दिस इज द क्रॉस चेकिंग ऑफ योर सॉल्यूशन. लाइक 2 5 10, बट सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 minus 2 is 3. तो हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फैक्टर पार्ट हमने सर्च कर लिया. 10 को हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया, 5 2 और 3 एडिशन सब्ट्रैक्शन में लाने के लिए हमने इसको लिख दिया 5 minus 2, बट 5 into 2, लाइक 5 minus 2 is equal to 3. Okay, got the middle terms, and 5 into 2 is equal to 10, got the last c terms. So again x square minus 3 is the break part, 5 minus 2 in bracket, and x minus 10 is equal to 0. Again note the x square and open the bracket, multiply by sign as well as variable. जैसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे minus 5x minus minus plus 2x sorry minus 10 is equal to 0. Again 1 2 3 4 ट्राइनोमियल फॉर्म आपके 4 टर्म्स में ब्रेक हो गए. इसको प्रॉपर फैक्टर निकालने के लिए 4 टर्म्स में इसलिए ब्रेक हो गए हैं कि अब ये पेयर वाइज हमारा कॉमन हो जाएगा. पेयर वाइज हमारा कॉमन हो जाएगा. आई थिंक यूज इन प्रीवियस क्लास. टेकिंग द कॉमन x and again x minus 5 in bracket balance, and last 2 terms 2x minus 10. Okay, so minimum common is 2 because in table of 2 2 5s are 10. So taking the common from last 2 terms 2 and x minus 2 5s are 10. कॉमन के बाद जो ब्रैकेट में लिखा जाता है जनरली वो डिवाइड करके लिखा जाता है. और जैसे हमने इसमें से x कॉमन लिया तो x स्क्वायर से जब x डिवाइड करेंगे x बैलेंस होगा. 5x में से जब हमने x कॉमन लिया तो x को डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल होके 5 बैलेंस होगा. हमने 2x में से 2 कॉमन लिया तो डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल होके x बैलेंस होगा. सेम जब हमने 10 में से 2 कॉमन लिया तो 10/2 मींस 5. ओके, ये ब्रैकेट आपका सेम होना चाहिए. अगर आपका फैक्टराइजेशन सही जा रहा है, कैलकुलेशन सही जा रहा है, तो लास्ट में आपको ये 2 ब्रैकेट के टर्म्स विद साइन सेम होने चाहिए. तो
x minus 5 सेम, तो इन होल लीनियर लाइन x minus 5 total common, so x minus 5 taking the common in the first bracket and remaining part mentioned in the second bracket, like x plus and 2, then bracket close. Okay, this is the half solution of this equation. But from here basically find the roots of the quadratic equation. Don't find the zeros of the quadratic polynomial. This is quadratic equation, तो find the roots of the quadratic equation. Okay, but अभी मैंने बताया कि roots और zeros are same. Okay, zeros word used in quadratic polynomial and roots word used in quadratic equation. So again, taking the x minus 5 is equal to 0 and again x plus 2 is equal to 0. So x is equal to plus 5 and x is equal to minus 2. There are two roots. Of the quadratic equation. So mention in the last 5 comma minus 2. These are roots of quadratic equation. Okay, understood student? Is it so? Note the calculation fast. Note. And after this and second question number 1 part second. The given equation is is 2x square plus x minus 6 is equal to 0. ओके, तो हमने क्या बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर के साथ जो उसकी वैल्यूज होगी उसका मल्टीप्लाई हम सी लास्ट टर्म थर्ड टर्म से करेंगे. जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम ऐसे प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे, ऐसे टू फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे कि उसका मिडिल टर्म आ जाए. बट हियर यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है? 1 अंडरस्टूड है. तो अगेन 2 6 12, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6 and 3 1 3. The factors of 12 is 2 into 2 into 3. Utilize 3 factors and got middle terms 1. How it's possible? Very simple. 2 to the 4 and 3. 2 to the 4 and 3. 4 into 3 is 12 and 4 minus 3 is equal to 1. ये प्रॉपर फैक्टर आपका इसमें बन गया. एक तरीके से हम लोग का आंसर चेक भी हो रहा है अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से ही करते हैं. बीच में आपको कोई भी साइन कोई एरर नहीं आएगा. क्वेश्चन आपका पूरी तरह सक्सेसफुली लास्ट मोमेंट तक सॉल्व हो जाएगा. इस तरीके से उसको सिंपली ब्रेक करा करिए और साइड में उसको डिस्प्ले भी किया करिए कि आपने किस नंबर से फैक्टर किया है. वो एट अ ग्लांस एकदम क्लियर कट दिख जाए. ओके, तो अगेन 2x square plus sign here is 1. Utilize the 1 like 4 minus 3 in the bracket. ब्रैकेट मेंशन कर दिया करिए क्योंकि ब्रैकेट मेंशन करने से फ़ायदा ये होता है कि अगर यहाँ पर प्लस साइन है तो कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बट यहाँ पर अगर ब्रैकेट के बाद माइनस साइन है तो ठीक
ये ब्रैकेट ना मेंशन करने की वजह से हमारे साइन में एरर आ जाता है, फिर हमारा प्रॉपर कॉमन नहीं बन पाता है। तो जो भी यहाँ पर आप फैक्टर ब्रेक करिए उसको ब्रैकेट में मेंशन करिए, तो साइन का मल्टीप्लाई प्लस आपके वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई गलत नहीं। एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर ओपन द ब्रैकेट लाइक प्लस एंड x प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 3x एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, टेकिंग द पेयर, फोर टर्म से जब ब्रेक हो जाए तो उसको टू के पेयर में ब्रेक कर लीजिए। तो इन फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर एंड सेकंड टर्म 4x, तो मिनिमम कॉमन क्या आएगा, टेबल से कैलकुलेशन करा करिए, 2 1 2 2 2 4, मिनिमम कॉमन 2 होगा, x स्क्वायर 2 टाइम्स है, x 1 टाइम्स है, तो मिनिमम x टाइम्स कॉमन आ जाएगा, तो टोटल कॉमन इज 2x। इन ब्रैकेट 2 आउट हो गया, x स्क्वायर में से एक x आउट हुआ तो सिंगल x रिमेनिंग, एंड प्लस 2 2 4, इसमें डिवाइड करके आप लिखेंगे 2x सिंगल टाइम था जो बाहर चला गया, तो फाइनली इस ब्रैकेट में x प्लस 2 टर्म्स ही पहले से हियर माइनस 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 आल्सो कॉमन, दोनों टर्म में माइनस का साइन है। हियर 3 देयर 6, 3 1 3 3 2 6, तो मिनिमम कॉमन क्या होना चाहिए 3, बट इन ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस हो गया कन्वर्ट, 3 आपका कॉमन हो गया, x माइनस भी आपने कॉमन लिया तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, 3 2 6 इक्वल टू 0। देखिए x प्लस 2 आर सेम, ये आपका एक तरह से फाइनल आंसर चेकिंग होती है। ये टर्म्स आपके ऑलवेज सेम होने चाहिए, अगर सेम नहीं होता साइन का एरर होता है तो आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो चुकी है। ओके, अगेन होल कॉमन इन द इक्वेशन, x plus 2 in first bracket and 2x minus 3 in the second bracket, taking the is equal to 0 because this is the quadratic equation, so is equal to 0 को लेके चलेंगे। ओके, again x plus 2 is equal to 0 and next part 2x minus 3 is equal to 0, so x is equal to minus 2 and here 2x is equal to plus 3, then x is equal to 3 upon 2. There are two roots of the quadratic equation. There are two roots of the given quadratic equation. First x is equal to minus 2 and second x is equal to 3 upon 2. These are two roots. Roots are minus 2 comma 3 upon 2. This is the answer. Okay, understood? Again note fast. After this question number 3rd. Question number 3rd थोड़ा टफ होगा, कैलकुलेशन पॉइंट से प्रोसेस वही करेंगे, सिर्फ अंडर रूट की वैल्यूज होने की वजह से उसको हमको कैलकुलेशन दूसरे टेक्निक से करना पड़ता है। ओके, नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं क्वेश्चन। ओके, the third question is the given quadratic equation is root 2x square plus 7x plus 5 root 2 is equal to 0. Okay, and this is important question. This is important question. रूट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूरे चांसेस होते हैं उसके आने के लिए। ओके,
because question is easy but calculation part is silly tough. Okay, not too tough, silly part. So this is the standard equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Yes or no? Yes, this is the standard quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. अगेन हमने क्या बताया आपको कि कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करना हो, ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन करना हो, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू साथ में होती है उसका मल्टीप्लाई हम लास्ट टर्म c के साथ करते हैं. ओके, तो अगेन √2 multiplied by 5 under √2. So √2 multiply 2 and 2 5s are 10. Again using the prime factor, 2 5s are 10, 5 1s are 5. Here middle term is 7. हमें इन दो फैक्टर को ऐसे यूज करना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमें 7 आ जाए बट मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए. सिंपली 5 into 2 is equal to 10 but 5 plus 2 is equal to 7. ये हमारा प्रॉपर फैक्टर हो गया. ओके, तो मेंशन √2x square plus 7 is the factor part. 5 plus 2 in bracket x plus 5 √2 is equal to 0. Here √2x square plus open the bracket and multiply by x respectively 5x plus 2x plus 5 √2 is equal to 0. 1 2 3 4 these are 4 terms. Okay, इस 4 terms को अब आपको अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इसको कॉमन ले सकते हैं, पेयर बना सकते हैं. √2 5 2 √2. इसको इजी वे में लेने के लिए हियर √2 एंड हियर √2 आप फर्स्ट को थर्ड टर्म से भी मैच करा सकते हैं और मिडिल टर्म को भी आप मैच करा सकते हैं. बेनिफिशियल क्या होगा कि आपका कॉमन तब भी हो जाएगा और आपके कॉमन ऐसे भी हो जाएंगे. अगर आप इसका पेयर इससे लेते हैं, इसका पेयर इससे लेते हैं और इसका पेयर इससे लेते हैं तो भी कॉमन हो जाएगा. तो जो आपको ऑर्डर पेयर सही लगता है उस ऑर्डर पेयर ये जिससे आपको कन्वीनियंट होता है वो ऑर्डर पेयर आप सेकेंड स्टेप में नोट कर लीजिए. ऑर्डर पेयर √2x square combined with 2x and plus 5x combined with 5 √2 is equal to 0. So again starting 2 terms and last 2 terms. This is minimum factor x square. So इस शुरू के टर्म्स में से क्या कॉमन हो जाएगा? x कॉमन हो जाएगा. ओके, अब यहाँ से आपको डाउट हो रहा है कि हम 2 कॉमन लें कि √2 कॉमन लें, यही डाउट है. तो इसका थोड़ा सा गेस आपको ये लास्ट का 2 टर्म्स हेल्प कर सकता है. कैसे? यहाँ क्या है 5, यहाँ क्या है 5, तो मिनिमम क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है. 5 कॉमन से हमारा जो फर्स्ट टर्म है उसमें से क्या बच रहा है x बच रहा है. तो ये हमारी हेल्प करेगा कि हमको भी इस फर्स्ट टर्म में कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारा सिर्फ x ही बचे. x के साथ यहाँ पर क्या है √2 है तो √2 को ही हम कॉमन बना देंगे तो हमारा यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा. ये कहाँ से हमको हेल्प मिल रही है? इसमें रूट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ इस तरह की हेल्प लेनी पड़ेगी. या स्टार्टिंग का 2 पेयर आपको हेल्प करेगा या लास्ट का 2 पेयर आपको कॉमन लेने में हेल्प करेगा. सो आप यहाँ पर √2x मिनिमम कॉमन लीजिए. √2x मिनिमम कॉमन लेने से √2x स्क्वायर में से √2x कॉमन हो गया तो बैलेंस क्या रहा? ओनली x प्लस जिसमें से आपने कॉमन क्या लिया? x कॉमन लिया तो x वेरिएबल बचेगा नहीं. बट 2 में से आपने क्या कॉमन लिया है? √2. तो मैंने बताया कि आपको कि जब भी कॉमन लिया जाता है तो उसका कैलकुलेशन ब्रैकेट के अंदर डिवाइड करके लिखा जाता है. तो जब टेबल होता है तो आप उसको ओरली पढ़ लेते हैं बट टेबल नहीं होगा तो आपको कैलकुलेशन करके भी देखना पड़ेगा. लाइक कैसे? 2x में से आपने कॉमन क्या लिया है? √2x.
रूट टू एक्स डिवाइड किया मैंने, सॉल्व करेंगे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन रूट टू, दिस इज रेशनल नंबर, सो सॉल्व दिस प्रोसेस, conjugate multiply by root 2 in numerator and denominator also, then product of 2 root 2 is 2 root 2 upon 2 root 2 multiply by root 2 is 2, so 2 2 cancel out, क्या बचा आपका root 2, क्या डिसाइड हुआ कि 2x में से जब रूट 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अंडरस्टूड। यही मेन पार्ट होता है फैक्टराइजेशन में, इससे बहुत से ऐसे स्टूडेंट इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाते, यहाँ पर रुक जाते हैं। बट टेक्निक क्या है, सिंपली कि जो कॉमन वर्ड बोला जाता है लेने के लिए, जहाँ पे रूट आता है तो वहाँ पर आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा साइड में, और सेकेंड बॉक्स आपकी पूरी पूरी हेल्प करता है कॉमन लेने के लिए, और ये इजी हो गया। 5 5 here 5 there 5, so minimum common is 5, in bracket x plus 5 root 2 में से 5 कॉमन, क्या बचा रूट 2, सेम प्रोसेस x plus root 2 x plus root 2 आर सेम हुआ। ये दो ब्रैकेट अगर सेम नहीं होंगे तो आपसे गलती कहीं पर हो गई है। सो वंस अगेन टोटल फ्रॉम द लाइन x plus root 2 in first bracket, in another bracket root 2x plus 5 is equal to 0, and last x plus root 2 is equal to 0, then root 2x plus 5 is equal to 0, so x is equal to minus root 2 and root 2x is equal to transfer minus 5, then x is equal to minus 5 upon root 2, because रूट 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब भी किसी मल्टीप्लाई का ट्रांसफर करेंगे डिवाइड, डिवाइड का ट्रांसफर करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस का ट्रांसफर करेंगे माइनस, माइनस का ट्रांसफर करेंगे प्लस। ओके, सो दीज आर टू रूट्स, x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन रूट 2, देयर आर टू रूट्स, देयर आर टू रूट्स, दिस इज answer of this quadratic equation. Okay, so in your home, student, in your home, solve the rest part of the question of this exercise, like question number 4 and 5 and question number 2 3 4 5 6. Okay, I am sending in PDF form solution of question number from 2 to 6, okay, in PDF form, so check it and reattempt, resolve every question of the quadratic equation chapter and exercise 4.2 in your homework copy and classwork copy. Okay, thank you so much students.